دوستو کبھی کسی بات چیت میں آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کی کوئی سن ہی نہیں رہا؟ آپ نے کوئی زبردست بات کی اور سب نے اسے نظر انداز کر دیا، پھر چند لمحوں بعد کوئی دوسرا وہی بات دہراتا ہے اور سب واہ واہ کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ طاقت ہمیشہ اونچی آواز میں نہیں ہوتی، طاقت اثر میں ہوتی ہے، اور اصل اثر وہ ہے جو بغیر شور، بغیر بحث انسان کے ذہن میں اتر جائے اور وہ خود بخود آپ سے متفق ہو جائے۔ یہی خاموش طاقت دنیا کے اصل بااثر لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ وہ زور نہیں لگاتے، وہ ذہنوں پر نرمی سے قبضہ کر لیتے ہیں۔ ان کے الفاظ میں وہ خاموش کشش ہوتی ہے جو انسان کو سوچنے پر نہیں، ماننے پر مجبور کرتی ہے۔ دوستو اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ آپ کی بات کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتے، آپ کی موجودگی کو نظر انداز کیا جاتا ہے، تو یاد رکھیں یہ آپ کی خامی نہیں ہے، یہ آپ کے اثر کی کمی ہے، اور اثر سیکھا جا سکتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ 5 نفسیاتی اصول بتانے والا ہوں جو انسان کو خاموشی سے آپ کے تابع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی جادو یا فراڈ نہیں ہے، یا خالی باتیں نہیں ہیں، یہ خالص سچ پر مبنی انسانی نفسیات ہے۔ وہی نفسیات جو دنیا کے بڑے لیڈرز، سیلز ایکسپرٹس اور ذہنی اثر کے ماہرین روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ ان رازوں کو سمجھ گئے تو آپ کے الفاظ، آپ کی موجودگی اور حتیٰ کہ آپ کی خاموشی میں بھی اثر آ جائے گا۔ تو چلے اب شروع کرتے ہیں پہلا راز، ایک ایسا اصول جو انسان کو اپنے ہی الفاظ کا قیدی بنا دیتا ہے۔ راز نمبر 1، عہد اور تسلسل، کمٹمنٹ اینڈ کنسسٹنسی۔ دوستو انسان بظاہر آزاد لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ وہ اپنے الفاظ کا غلام ہے۔ جب کوئی انسان کسی بات پر عہد کر لیتا ہے، چاہے وہ معمولی وعدہ ہو یا ایک ہلکی سی ہاں، تو وہ اس عہد کو نبھانے کے لیے اندر سے ایک دباؤ محسوس کرتا ہے۔ یہ دباؤ صرف اخلاقی نہیں بلکہ نفسیاتی ہے، ایک ایسی زنجیر جو انسان خود اپنے ہاتھوں سے باندھ لیتا ہے۔ میرے نفسیات رابرٹ سیلڈینی نے اسی رجحان کو کمٹمنٹ اینڈ کنسسٹنسی کہا ہے۔ ان کے مطابق انسان اپنے قول و فعل میں تسلسل رکھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ ایک بار ہاں کہہ دے تو بعد میں نہ کہنا اس کے لیے خود اپنی شخصیت کے خلاف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کے فیصلوں کے ساتھ مستقل مزاج نظر آئے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کے اندر ایک عجیب سا تضاد پیدا ہوتا ہے جسے ماہرین کاگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں، اور انسان اس تضاد سے بچنے کے لیے اکثر وہی کام کرتا ہے جس پر وہ پہلے تھوڑا سا بھی متفق ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ نے خود اپنی زندگی میں یہ بات دیکھی ہوگی، کسی دوست سے کہا یار بس 1 منٹ کے لیے میری بات سن لو، اور وہ رک گیا، پھر تھوڑی دیر بعد وہی دوست آپ کی پوری گفتگو سن لیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کے ساتھ اتفاق بھی کر لیتا ہے، اور ممکن ہے اس میں کئی گھنٹے گزر جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک چھوٹا سا ہاں کہا تھا، اور اب وہ اپنے اس ہاں سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا۔ یہی اصول تعلقات، دوستی اور حتیٰ کہ کاروبار میں بھی جادو کی طرح کام کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے نظریے، آپ کی بات یا آپ کے مشن میں شامل ہو جائے تو اسے فوراً پوری تصویر مت دکھائیں، پہلے اسے ایک عام چھوٹے قدم پر قائل کریں۔ مثلا تم صرف ایک بار سن لو، بس 1 منٹ کے لیے دیکھ لو، یا اگر تم چاہو تو ذرا یہ چھوٹا سا میرا کام کر دو۔ یہ چھوٹا سا ہاں دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایک بار وہ اندر آ گیا تو ایسا ایسا وہ خود بخود بڑی باتوں پر بھی راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس کا دماغ کنسسٹنسی چاہتا ہے۔ یاد رکھو، لوگ منطقی دلائل سے کم اور اپنے الفاظ کے دباؤ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ بس ان سے ایک چھوٹا سا وعدہ کراؤ، ایک چھوٹا سا اقرار، پھر وہ اپنے ہی فیصلے کے قیدی بن جاتے ہیں۔ یہی خاموش نفسیاتی چال لوگوں کو آپ کی بات ماننے پر مجبور کرتی ہے، بغیر چیخ و پخار، بغیر بحث، بس ذہن کے اندر ایک ہاں گونجتی ہے اور وہ آپ کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں دوسرے راز کی طرف، وہ طاقت جو انسان کو فوراً ماننے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ وہ آتی ہے اختیار کی شکل میں۔ راز نمبر 2، اختیار کا اثر، دی پاور آف اتھارٹی۔ اب آتے ہیں دوسرے نفسیاتی راز کی طرف، اختیار کا اثر۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ وہ نہیں سوچتے جو درست ہوتا ہے، بلکہ وہ سوچتے ہیں جو کسی معتبر انسان نے کہا ہو۔ انسانی دماغ خود تحقیق نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے۔ انسانی نفسیات کا ایک حیران کن مگر سادہ اصول ہے، جب کوئی شخص طاقت، علم یا تجربے کی علامت بن جائے تو لوگ اس کے الفاظ پر شک نہیں کرتے، بلکہ فوراً اسے سچ مان لیتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے تو علاج مانا جاتا ہے، اگر پروفیسر بول دے تو نوٹس بننے لگتے ہیں، اور اگر کوئی مشہور شخصیت کچھ کہہ دے تو لاکھوں لوگ بنا سوچے اسے سچائی سمجھ لیتے ہیں۔ میرے نفسیات رابرٹ سیلڈینی کے مطابق یہی رجحان اتھارٹی پرنسپل کہلاتا ہے۔ یہ انسانی دماغ کا شارٹ کٹ ہے، اگر یہ میں ہے تو میں کیوں تجزیہ کروں، اس کا مان لینا ہی آسان ہے۔ یہی وہ کمزوری ہے جسے سمجھنے والا انسان دوسروں پر اثر ڈال سکتا ہے، مگر یاد رکھو یہ کھیل اخلاق کے دائرے میں ہونا چاہیے، کیونکہ اختیار کا غلط استعمال تاثیر کو وقتی بنا دیتا ہے اور اعتماد کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیتا ہے۔
देता है। अब सवाल यह कि आप इस असूल को अपने फायदे में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जवाब सादा है, अपने आप को बाएतमाद दिखाओ। तुम बात करो तो लहजे में यकीन हो, जब कोई मिसाल दो तो वो तजर्बे से भरी हुई हो, महज अल्फाज से नहीं। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारा अंदाज ये पैगाम दे कि मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। लोग अक्सर लफ्जों पर नहीं लहजे पर यकीन करते हैं। आपका अंदाज अगर बाख्तियार हो तो वही आम सी बात भी गैर मामूली लगने लगती है। इसलिए बड़े लीडर्स, उस्ताद या स्पीकर्स खामोश रहकर भी असर छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी में एतमाद बोलता है। इख्तियार का मतलब गरूर नहीं बल्कि यकीन है, अपने इल्म, अपने तजर्बे और अपनी बात पर। जब आप ये यकीन जाहिर करते हैं तो दूसरों के दिमाग खुद ब खुद तजिया करना बंद कर देते हैं और आपकी बात को हकीकत मान लेते हैं। याद रखो, दुनिया में असर और रसूख हमेशा उनके पास रहता है जो जानने वाले दिखाई देते हैं, चाहे वो खामोश क्यों ना हो। अगला राज और भी खतरनाक है, एक ऐसा नफ्सियाती हथियार जो लोगों को आपके खिलाफ होने से पहले ही आपके साथ खड़ा कर देता है। राज नंबर 3, पेशकश का जाविया, फ्रेमिंग एंड कॉग्निटिव बायस। तीसरा नफ्सियाती राज शायद सबसे दिलचस्प है, क्योंकि ये अल्फाज नहीं जाविया बदलता है। इंसान का दिमाग लॉजिक से नहीं तासुर से फैसला करता है। ये हर जुमले का तजिया नहीं करता, बल्कि ये देखता है कि बात किस अंदाज में कही गई है। इसको मेरे नफ्सियात फ्रेमिंग इफेक्ट कहते हैं। दिमाग मालूमात को मुख्तलिफ फ्रेम्स में रख कर समझता है। अगर फ्रेम मुस्बत हो तो आम बात भी दिल को लगती है, अगर फ्रेम मनफी हो तो बेहतरीन बात भी मशकूक लगती है। यानी हकीकत वही रहती है, बस पेशकश का जाविया बदलने से एहसास और नतीजा दोनों बदल जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने ऑफिस में कहें हमें अखराजात कम करने हैं तो लोग फौरन दिफाई हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि उन पर पाबंदी लग रही है, कोई कमी होने वाली है। लेकिन अगर आप यही बात यूं कहें हम वसाइल को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करके अपने मुलाजमीन की तरक्की में ज्यादा सरमाया लगा सकते हैं, तो वही लोग खुशी से मुत्तफिक हो जाएंगे। दोनों जुमले एक ही हकीकत बयान करते हैं लेकिन फ्रेम अलग है। यही फ्रेम इंसानी दिमाग का शॉर्टकट है। माहिरीन कहते हैं कि हमारा दिमाग लॉस अवर्जन से मुतासिर होता है, यानी हम नुकसान से बचने के लिए फायदा हासिल करने से ज्यादा तेजी से अमल करते हैं। अगर आप किसी से कहें कि ये मत करना वरना 10% नुकसान होगा तो वो फौरन मुहतात हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें ये करो ताकि 10% फायदा हो तो असर इतना गहरा नहीं होगा। ये फर्क छोटा लगता है लेकिन यही फर्क बड़े फैसलों की समत बदल देता है। यही वो राज है जिसे ज़हीन लोग रोजमर्रा गुफ्तगू, सेल्स, मुज़ाकरात और तल्लुकात में इस्तेमाल करते हैं। वो हकीकत नहीं बदलते, सिर्फ एहसास का फ्रेम बदल देते हैं। इसलिए याद रखें, लोग हमेशा सच नहीं मानते, वो वही मानते हैं जो खूबसूरत अंदाज में सच लगे। आपका जाविया जितना मौसर होगा लोग उतनी जल्दी आपकी बात को अपनी सोच समझ लेंगे। अब अगला राज उससे भी ज्यादा गहरा है। ये वो नफ्सियाती तरीका है जो इंसान के दिमाग में मोहब्बत और इत्ताअत दोनों पैदा कर देता है। राज नंबर 4, जज्बाती असर, इमोशनल एवोकेशन। चौथा राज इंसान के अंदर के सबसे नाजुक मकाम को छूता है, एहसासात। हम अक्सर खुद को मंतकी और समझदार समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी जिंदगी के तकरीबन 90% फैसले जज्बात पर होते हैं, मंतक पर नहीं। दिमाग सिर्फ जवाब ढूंढता है, फैसला दिल पहले ही कर चुका होता है। यही वजह है कि अगर आप किसी के एहसासात को छू लें तो आप उसके दिमाग, फैसले और रवैये तक रसाई हासिल कर लेते हैं। दुनिया के बड़े लीडर्स, मुकर्रिर और मार्केटिंग माहिरीन इसी असूल पर खेलते हैं। वो मंतक नहीं देते, कहानियां सुनाते हैं, क्योंकि कहानियां दिमाग से नहीं दिल से बात करती हैं। जब आप किसी से गुफ्तगू करें या उसे कैल करना चाहें तो खुश्क दलाइल और फैक्ट्स के बजाय ऐसा मंजर पेश करें जो महसूस हो। मसलन अगर आप उम्मीद जगाना चाहते हैं तो कोई ऐसी कहानी सुनाएं जिसमें अंधेरे के बाद रोशनी आती हो। अगर आप किसी को मोहतात बनाना चाहते हैं तो खौफ का अंसर जगाएं, क्योंकि खौफ इंसान को तेजी से अमल पर मजबूर करता है। यही असूल इश्तिहारात, तकरीरों और तल्लुकात में सबसे ज्यादा असर डालता है। एक आम जुमला अगर जज्बात से खाली हो तो सिर्फ अल्फाज बन जाता है, लेकिन अगर वही जुमला एहसास से भरा हुआ हो तो वो दिल में उतर जाता है। मसलन अपने ख्वाब पूरे करो एक आम बात है, लेकिन अगर आप कहें तुम वो बन सकते हो जिसका तुमने बचपन में ख्वाब देखा था तो वो जुमला अंदर तक जाकर असर करता है। लेकिन याद रखें, ये ताकत जितनी मौसर है उतनी खतरनाक भी है। एहसास से खेलना आसान नहीं, क्योंकि ये इंसान के अंदर का सबसे हसास इलाका है। अगर आप इसे गलत नियत से इस्तेमाल करेंगे तो वक्ती असर तो पड़ेगा, लेकिन भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसलिए इस राज को हमेशा इखलाकी मकसद के लिए इस्तेमाल करें, किसी को काबू करने के लिए नहीं, बल्कि किसी को खुद की हकीकत दिखाने के लिए इस्तेमाल करें। जज्बाती असर वो ताकत है जो इंसान को बदल देती है, लेकिन तब भी जब वो सच्चाई के साथ दी जाए। और अब आखिरी राज, एक ऐसा असूल जो किसी भी ताल्लुक या बातचीत को खामोशी से आपके कंट्रोल में ला सकता है। राज नंबर 5, इज्तिमाई असर, सोशल प्रूफ एंड पोलराइजेशन।
और अब आते हैं आखिरी और सबसे ताकतवर राज की तरफ। वो राज जो इंसान को खुद से ज्यादा दूसरों को गुलाम बना देता है, ये है इज्तिमाई असर, या नफ्सियाती जबान में से सोशल प्रूफ कहते हैं। इंसान एक समाजी मखलूक है। हम फैसले सिर्फ अक्ल से नहीं करते, बल्कि ये देख कर करते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। अगर लोग किसी चीज को दुरुस्त मान रहे हैं तो हमारा दिमाग फौरन कहता है ये ठीक ही होगा, आखिर सब ऐसा कह रहे हैं। यही वजह है कि हम भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं, क्योंकि अकेला मुख्तलिफ नजर आना हमें खतरनाक लगता है। इसी असूल की बुनियाद पर दुनिया में फैशन, नजरियात और सियासी तहरीकें फैलती हैं। आपने देखा होगा कि कोई चीज जैसे ही ट्रेंड बन जाती है, लोग बिना सोचे समझे उसे फॉलो करने लगते हैं। यही सोशल प्रूफ है। यहाँ ज्यादा लोग कर रहे हैं, खुद एक सबूत बन जाता है कि ये दुरुस्त है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो उन्हें ये एहसास दिलाएं कि ज्यादातर लोग पहले ही इस बात से मुत्तफिक हो चुके हैं। ये एक नफ्सियाती जाल है जो दिमाग को महफूज महसूस कराता है। दिमाग कहता है कि अगर सब मान रहे हैं तो मैं गलत नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक और गहरी टेक्निक छुपी है, पोलराइजेशन, यानी अपने नजरिए को हम बेमुकाबला वो के जाविये से पेश करना। जब आप किसी ग्रोह को ये एहसास दिलाते हैं कि हम एक जैसे हैं और वो हम जैसे नहीं, तो आप उनके अंदर वफादारी पैदा करते हैं। ये वफादारी इतनी ताकतवर होती है कि लोग आपके नजरिए का दिफा करते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इसलिए दुनिया के ताकतवर तरीन लीडर हमेशा शनाख्त पर जोर देते हैं। वो अपनी कौम, अपनी जमात, अपने रंग और नस्ल, अपने शहर, अपने मुल्क, इन अल्फाज की मदद से हम का एहसास पैदा करते हैं। यही एहसास इंसान को खामोशी से बांध देता है, बगैर जंजीर के, बगैर हुक्म के। याद रखें, इज्तिमाई असर वो ताकत है जो इंसानों को एक सिमत में बहा देती है। तो आप सिर्फ लोगों से बात नहीं करेंगे, आप उनके अंदर बोलेंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 5 खामोश मगर इंतहाई ताकतवर असूल जो इंसानों के रवैये, फैसले और सोचने के अंदाज को अंदर से बदल देते हैं। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, लोग अपने कहे हुए हाँ के गुलाम होते हैं। अथॉरिटी, जब कोई मैर दिखाई दे तो लोग सोचना छोड़ देते हैं। फ्रेमिंग एंड बस, बात वही रहती है, बस जाविया बदलने से असर बदल जाता है। इमोशनल एजुकेशन, एहसास हमेशा अक्ल पर भारी पड़ता है। सोशल प्रूफ एंड पोलराइजेशन, अक्सरियत और शनाख्त का एहसास इंसान को खामोशी से आपके ताबे बना देता है। यह असूल इतने ताकतवर है कि इनसे आप चाहें तो लोगों के ज़हनों को काबू कर सकते हैं और चाहें तो उनके दिलों को रोशन कर सकते हैं। फर्क सिर्फ नीयत में है। याद रखें, ताकत खुद बुरी नहीं होती, बुरा उसका गलत इस्तेमाल होता है। अगर आपने इन असूलों को समझकर इन्हें ताल्लुकात मजबूत बनाने, एतमाद बढ़ाने और क़यादत संवारने में इस्तेमाल किया तो आपका असर हजारों आवाजों से ज्यादा ताकतवर होगा। खामोश रहकर भी असर डालना कमजोरी नहीं, बसीरत है। ये वो हुनर है जो दुनिया के बड़े ज़हनों के पास होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए एक नई आंख खोलने वाली थी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप सबसे पहले कौन सा असूल अपनी जिंदगी में आजमाना चाहते हैं। याद रखें, दुनिया उनकी नहीं जो शोर मचाते हैं, बल्कि उनकी है जो खामोशी से दिल बदल देते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।